Hi friends, I am Bena. Welcome to my YouTube channel where we discuss various legal concepts in a very comprehensive manner and decode them to learn effectively and effortlessly. So if you are a LLB student or a judiciary examination aspirant or in general a legal enthusiast, these discussions will certainly give you extra mileage. So let's start the process of easy learning of laws. So today's topic is special contracts. As per Indian Contract Act 1872, there are five types of special contracts: contract of indemnity, contract of guarantee, contract of bailment, contract of pledge, and contract of agency. Today we will discuss these two, indemnity and guarantee. In next class we will discuss bailment and pledge, and contract of agency we will be discussing in two classes. ये थोड़ा बड़ा है. Okay. So let's first understand what is indemnity. Indemnity is a promise. Okay. There is a party A, there is a party B. A and B enter into a contract, any kind of contract. Okay. But in this contract, A promises to compensate any future loss that will be occurring to B. सो बी को अगर फ्यूचर में कोई भी लॉस होगा इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, सो ए क्या प्रॉमिस करता है बी को कि मैं वो लॉस को कंपेंसेट करूंगा. वो लॉस कैसे हो सकता है? ड्यू टू एनी एक्शन ऑफ ए और ड्यू टू एनी एक्शन ऑफ एनी अदर पर्सन ऑल्सो. ओके. सो द प्रॉमिस इज नोन एज द इंडेमनिटी. व्हाट काइंड ऑफ प्रॉमिस? टू कंपेंसेट द फ्यूचर लॉसेस टू द अदर पार्टी. ठीक है. So section 124 of the Indian Contract Act actually defines the contract of indemnity. Let's see the definition first. See, as per section 124 of Indian Contract Act 1872, a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. ठीक है, वो जो मैं बोल रहा था, वो लॉस कैसे हो सकता है? कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर, जो ए बी थे, ए प्रोमिसर था, तो उसका खुद के एक्शन से या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी और के एक्शन से भी बी को अगर फ्यूचर में कोई लॉस होगा तो ए उसका भरपाई करेगा, उसका कंपेंसेट करेगा. वो जो प्रॉमिस होता है फ्यूचर लॉस को कंपेंसेट करने का, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. Okay, so in contract of indemnity, in every kind of contract there must be parties. So in the contract of indemnity also there are parties. One party is called the indemnifier who promises to compensate the loss of the other party. एंड जो पार्टी का लॉस के लिए कंपेंसेशन मिलेगा, वो प्रॉमिस मिलता है, वो दूसरे पार्टी को बोलते हैं इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनिफायर. सो इंडेमनिफायर इज द पर्सन हु प्रोमिसेस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट और मेक गुड द लॉस. मेक गुड द लॉस मतलब जो भी लॉस हुआ उसको कंपेंसेट करना है, उसको गुड करना है, वो लॉस को रिकवर करना है. ओके. इंडेमनिटी होल्डर कौन है? दूसरा पार्टी है, द पर्सन हुज लॉस इज टू बी प्रोटेक्टेड और कंपेंसेटेड. यहाँ पे जो हम देखे थे, ए था द प्रोमिसर, बी था द प्रोमिसी, A is the indemnifier, A is the indemnifier, and B is the indemnity holder. ठीक है. Then essential elements of an indemnity contract, a valid indemnity contract. क्या क्या हम कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़े थे, सेक्शन 10 में हम पढ़े थे. कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 10 में हम क्या पढ़े थे, किसको हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे? The essential elements of a valid contract are lawful consideration, lawful object, there must be competent parties, the parties must be competent to enter into the contract, और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंसेंट फ्री होना चाहिए किससे? कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक, ये सारे. ठीक है. सो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली, सो इट नीड्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स दैट इज बीन डिफाइंड फॉर द normal contracts as per section 10. Okay. So second essential element is protection from loss. Indemnity itself is the promise to protect. Okay, promise to compensate the future loss. So there should be a clause regarding to protection of future loss. And event क्या है? That event that can cause injury, that can cause damage, or that can make loss for the indemnity holder. Okay, कोई ऐसा इवेंट होगा जिससे कॉन्ट्रैक्ट में जो दूसरा पार्टी होता है, जो प्रॉमिस ही होता है, उसको अगर कोई लॉस होगा तो उसे बोलते हैं इवेंट. वो वैसा कुछ इवेंट होगा तो वो प्रोटेक्शन वाला सीन आएगा. लॉस नहीं होगा तो प्रोटेक्शन का कोई सीन ही नहीं है. ठीक है. और द कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड. वो जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, मतलब वो वेल डिफाइंड हो सकता है. वो ए और बी, वो जो इंडेमनिफायर और इंडेमनिटी होल्डर के बीच में एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है. वो रिटन मतलब एक्सप्रेस मतलब रिटन और स्पोकन, और वो इम्प्लिसिट इम्प्लाइड भी हो सकता है. मतलब वैसा कोई इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इंडेमनिटी को लेके, लेकिन वहां पे एक सेंस बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वो जो प्रोमिसर है उसका, टू प्रोटेक्ट द लॉस ऑफ द
प्रोमिसिव। ओके, सो इसे बोलते हैं एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। हम अगर केस लॉ लेंगे, एक बहुत पुराना केस है, 1827 का एक केस है, ये लैंडमार्क केस है, एडम्सन वर्सेस जार्विस। एडम्सन यहाँ पे प्लेंटिफ था, जार्विस यहाँ पे डिपेंडेंट था। तो जार्विस जो था वो एडम्सन को कुछ कैटल ऑक्शन करने के लिए बोला था। एडम्सन ने जो प्लेंटिफ था ऑक्शनर था, सो ऑक्शन कर दिया। लेकिन बाद में एक दूसरा पार्टी है, वो बोला कि वो तो जार्विस के कैटल नहीं, तो मेरे कैटल थे, तुम कैसे उसको ऑक्शन कर दिया। तो उसको केस कर दिया। वो जो दूसरा पार्टी था, जो रियल ओनर था कैटल का, वो एडम्सन के ऊपर केस कर दिया। तो एडम्सन बोला, अरे मुझे तो नहीं पता था, मैं तो समझा था वो कैटल जार्विस का है, तो मैंने ऑक्शन कर दिया। लेकिन अभी अगर ये पता चल रहा है कि वो कैटल कोई दूसरा आदमी का था, तो एडम्सन ने क्या किया, एक दूसरा केस डाल दिया जार्विस के ऊपर कि ये कैटल तुम्हारे नहीं थे, लेकिन तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया ऑक्शन करने के लिए, मैंने ऑक्शन कर दिया। अब एक तीसरा पार्टी आके मुझे बोल रहा है कि वो मेरा कैटल था। सो यहाँ पे प्लेंटिफ बना एडम्सन और डिफेंडेंट बना जार्विस। ये जो फेक ओनर है, जार्विस मतलब जो फेक ओनर था कैटल का, जिसने एडम्सन को ऑक्शन करने के लिए बोला था, एडम्सन यहाँ पे था प्लेंटिफ। तो कोर्ट यहाँ पे क्या बोला, कोर्ट डिसाइड ये किया कि अगर एडम्सन गुड फेथ में वो कॉन्ट्रैक्ट किया, वो ऑक्शन किया था, उसको पता नहीं था रियल ओनर कौन है, लेकिन जार्विस ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो जार्विस का एक मोरल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो कंपेंसेट करे एडम्सन को। ठीक है, तो यह यहाँ पे क्या है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लाइड इंडेमनिटी है। क्योंकि इन दोनों में, एडम्सन और जार्विस के बीच में ऑक्शन को लेकर कॉन्ट्रैक्ट था, इंडेमनिटी को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। लेकिन कोर्ट बोला कि अगर तुमने इसको बोला था ऑक्शन करने के लिए, ऑक्शन किया, और अभी दूसरा आदमी आके बोल रहा है कि वो ऑक्शन इलीगल है क्योंकि वो जार्विस रियल ओनर नहीं था, सो ये ऑक्शन से एडम्सन को ये लॉस हुआ है। इसीलिए कोर्ट जार्विस को बोला कि दो यू डोंट हैव इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू टू, बट यू हैव टू कंपनसेट द लॉस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइड इंडेमनिटी। इंडियन केस एक है 1942 का, ये थोड़ा प्री इंडिपेंडेंस पुराना केस है, गजानन मोरेश्वर परेलकर वर्सेस मोरेश्वर मदन मंत्री। ये एक्चुअली एक लैंडमार्क जजमेंट है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो प्लेंटिफ था वो एक लीज होल्डर था एक लैंड का, और एक डिफेंडेंट था जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी था, और एक सप्लायर था जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई करता था कंस्ट्रक्शन के लिए। सो जो प्लेंटिफ लीज होल्डर था, वो लीज दिया किसको, कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी को। इन दोनों के बीच में कंस्ट्रक्शन को लेके कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और जो डिपेंडेंट था वो क्या किया, वो सप्लायर से रॉ मटेरियल लिया कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन उसका जो बिल पेमेंट करना था वो नहीं किया। तो सप्लायर जो अपने बिल नहीं, वो अपना पैसा नहीं मिला उसको, तो उसने क्या किया, प्लेंटिफ जो था लीज होल्डर था, उसके ऊपर केस ठोक दिया कि तुम मेरे पैसा दो क्योंकि तुम्हारी जगह पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो प्लेंटिफ ने क्या किया, एक दूसरा केस डाला डिफेंडेंट के ऊपर कि तुम इसको पैसा नहीं दे रहे हो, ये मुझ पे केस कर रहा है, तो तुम मुझे पैसा दो। लेकिन ये क्या बोला, ये बोला कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज टू मेक गुड द लॉस। अगर कोई लॉस हुआ है तो उसको कंपेंसेट करना है। लेकिन डिफेंडेंट का आर्ग्यूमेंट यही था कि इसने केस किया है तुम पर, लेकिन तुमने उसको कोई पेमेंट नहीं किया है, तुम्हारा कोई एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है, तो मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा। तो प्लेंटिफ बोला, नहीं नहीं, ये तो मुझे पैसा मांग रहा है, मुझे पैसा देना है, तो मुझे पैसा दोगे तो मैं इसे दूंगा। तो ये जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के ऊपर केस किया, इसमें कोर्ट ने ये बोला कि दो प्लेंटिफ हैज नॉट इनकर्ड एनी लॉस, एनी एक्चुअल लॉस, बट द लॉस इज इमिनेंट, बिकॉज ये अगर केस कर रहा है, केस ये जीत गया, तो प्लेंटिफ को तो इसको पेमेंट देना पड़ेगा। लेकिन प्लेंटिफ अभी तक पैसा नहीं दिया है, उसको फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, लेकिन उसको फ्यूचर में फाइनेंशियल लॉस होगा जब वो पेमेंट करेगा। इसीलिए डिफेंडेंट का एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, वो पैसा पेमेंट करे प्लेंटिफ को। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी has been defined in section 126 of the Indian Contract Act 1878। सॉरी, ये 1872 है, 78 नहीं। So contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default। यहाँ पे keywords क्या है, perform the promise or discharge the liability of a person, of a third person in case of his default। okay, so हम डायग्राम में समझते हैं। ये इंडेमनिटी है, ये क्या था, दो पार्टी थे ए एंड बी, बट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी there are three parties। one party is known as creditor, दूसरा पार्टी है आपका प्रिंसिपल डेटर, एंड द थर्ड पार्टी इज श्योरिटी। थर्ड पार्टी मतलब वन टू थ्री, इसलिए थर्ड। तो क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो होता है आपका
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। हम समझते हैं, क्रेडिटर एक लोन दिया प्रिंसिपल डेटर को, क्रेडिटर मतलब बैंक, प्रिंसिपल डेटर मतलब लोनी जो लोन लेता है, ठीक है, हम जैसे लोग। सो क्रेडिटर एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद द प्रिंसिपल डेटर टू गिव ए लोन, बट फॉर मेंटेनिंग ए बेटर assurance of return of the given loan, creditor also mandates the principal debtor to bring a guarantor. Okay, so principal debtor surety मतलब guarantor. Okay, so in case of the default of the principal debtor, अगर principal debtor repay नहीं कर पाया तो repayment कौन करेगा? Surety करेगा, guarantor करेगा, ठीक है। so वही हम यहाँ पे देखें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस। परफॉर्म द प्रॉमिस मतलब क्या? वो प्रिंसिपल डेटर ने प्रॉमिस किया था बैंक को लोन लौटाने के लिए, लेकिन वो अगर डिफॉल्ट कर गया तो उसको उसका जो प्रॉमिस था उसको कौन परफॉर्म करेगा? गारंटर परफॉर्म करेगा, उस श्योरिटी परफॉर्म करेगा। और डिस्चार्ज द लायबिलिटी, जो भी लायबिलिटी उसका था प्रिंसिपल डेटर का, उसने डिफॉल्ट कर दिया तो कौन उस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा? श्योरिटी मतलब गारंटर, ठीक है। और फिर थर्ड पर्सन इन केस ऑफ इज डिफॉल्ट। थर्ड पर्सन मतलब क्या है? यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर को थर्ड पर्सन बोला जा रहा है, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो किसके बीच में होता है? वो क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में होता है। तो ये दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो रहा है, इसको देखें तो ये कौन है? थर्ड थर्ड पर्सन, वो जो प्रिंसिपल डेटर थर्ड पर्सन। लेकिन एक्चुअल प्राइमरी एग्रीमेंट किस, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन किए थे? क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर, वो लोन को लेके। श्योरिटी आया, बोला कि अगर ये नहीं दे पाएगा तो मैं दूंगा, ठीक है। सो दिस इज ए ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट। इंडेमनिटी में दो पार्टी थे, बाइपार्टाइट। यहाँ पे तीन पार्टी है, इसीलिए ट्राइपार्टाइट। सो यहाँ पे जो ट्राइपार्टाइट है, तीन कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे। एक है प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर, बैंक और लोनी। बैंक लोन देता है लोनी को, ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कौन देता है? गारंटी दे, गारंटर मतलब श्योरिटी देता है क्रेडिटर को, मतलब जो गारंटर है वो बैंक को बोलता है। ये हुआ गारंटर, ये हुआ बैंक। गारंटर बोला कि अगर वो लोनी जो प्रिंसिपल डेटर था वो लोन नहीं रिपे कर पाएगा तो मैं पे करूंगा, मैं गारंटी देता हूं। और इम्प्लाइड इंडेमनिटी, गारंटी में एक इंडेमनिटी छुपा हुआ है। क्यों? लेट्स टॉक अबाउट इट। सी, द लोन हैज बीन गिवन फ्रॉम द क्रेडिटर टू द प्रिंसिपल डेटर, लेकिन ये रिपे नहीं कर रहा है, इसीलिए श्योरिटी रिपे कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। 1 लाख रुपए का लोन था, क्रेडिटर ने 1 लाख रुपए प्रिंसिपल डेटर को दिया, प्रिंसिपल डेटर नहीं लौटाया, श्योरिटी 1 लाख रुपए क्रेडिटर को लौटा रहा है, तो श्योरिटी को तो लॉस हुआ। ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी इनकर्ड द लॉस ऑफ 1 लाख रुपीज। सो प्रिंसिपल डेटर का एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बाद में वो श्योरिटी को वो जो लॉस हुआ है उसको कंपेंसेट करे। वही तो इंडेमनिटी है ना। इंडेमनिटी मतलब क्या? फ्यूचर लॉस को कंपेंसेट करना है। सो दो प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में यहाँ पे कोई ऐसा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो दोनों ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए थे कि मैं नहीं दूंगा तो तुम दोगे। श्योरिटी अपने आप से बोल रहा है बैंक को जाके कि मैं, गारंटर अपने आप बोल रहा है कि मैं गारंटी देता हूं, मैं दूंगा। लेकिन प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में कोई ऐसा फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फिर भी प्रिंसिपल डेटर का एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो बाद में श्योरिटी को वो पैसा लौटा दे। सो इसे बोलते हैं इम्प्लाइड इंडेमनिटी, ठीक है। सो मार्क वन थिंग, इंडेमनिटी में गारंटी का कोई सीन नहीं है, लेकिन गारंटी में इंडेमनिटी छुपा हुआ है, ठीक है, वो जो इम्प्लाइड इंडेमनिटी वाला। नेक्स्ट देखिए, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़े अभी। पहला पार्टी कौन है? श्योरिटी, श्योरिटी मतलब जो गारंटर। दूसरा पार्टी प्रिंसिपल डेटर मतलब जो लोन लेता है, और क्रेडिटर इज द बैंक, ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड गारंटी, जैसे हम इंडेमनिटी में पढ़े थे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड इंडेमनिटी, जैसे यहाँ पे एसेंशियल ऑफ वैलिड गारंटी। तो गारंटी भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। सो कॉन्ट्रैक्ट का सारा जो एसेंशियल एलिमेंट्स होता है वो सारा होना चाहिए यहाँ पे। सो प्रिंसिपल डेट मस्ट एग्जिस्ट, मतलब जो आपका एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए, कॉन्सिडरेशन होना चाहिए, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, वो सब होंगे। उसके बाद अलावा भी कुछ और एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए। वो क्या है? प्रिंसिपल डेट मस्ट एग्जिस्ट, मतलब गारंटी किसके लिए दे? वो जो क्रेडिटर जो लोन देता है प्रिंसिपल डेटर को, वो है आपका प्रिंसिपल डेट। अगर प्रिंसिपल डेट होगा
तो उसके डिफॉल्ट जब होगा तो गारंटर बोलेगा कि मैं गारंटी देता हूं। अगर डेट ही नहीं होगा, कोई लोन ही नहीं होगा, तो सिक्योरिटी किस चीज का गारंटी देगा? सो देर मस्ट बी ए प्रिंसिपल डेट। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है आपका कंसिडरेशन। यहाँ पे थोड़ा कैच है। देखिए, डायरेक्ट कंसिडरेशन टू द सिक्योरिटी इज नॉट नेसेसरी, ये इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी का डायरेक्ट कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। एनीथिंग डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द सिक्योरिटी। मतलब क्या? देखिए, आपका जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन क्या होता है? अगर ए बी को एक गाड़ी बेचा, तो ए का कंसिडरेशन है क्या? बी उसको पैसा दे। बी का कंसिडरेशन क्या है? ए इसको गाड़ी दे। मतलब ए के लिए कंसिडरेशन है पैसा और बी के लिए कंसिडरेशन है गाड़ी। वो दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे जो श्योरिटी है, जो गारंटर है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है। वो अपने आप से एक रिस्क ले रहा है। बैंक लोनी को लोन दे रहा है। अब गारंटर बोल रहा है कि लोनी अगर रिपे ना करे तो मैं रिपे करूं। लेकिन लोन किसको मिल रहा है? लोनी को। तो गारंटर का कोई अपना फायदा नहीं है। वो सिर्फ, वो थोड़ा क्या है, वो थोड़ा दयालु है, थोड़ा दरियादिली दिखाता है। वो एक रिस्क लेता है अपने ऊपर कि अगर लोन ये रिटर्न ना करे तो आई विल रिटर्न इट, आई विल रिपे टू द बैंक। ओके, सो फॉर द श्योरिटी, फॉर द गारंटर, द ओनली कंसिडरेशन इज द प्रिंसिपल डेटर गेट्स ए क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम द क्रेडिटर, फ्रॉम द बैंक। दिस इज द कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी। देर इज नो पर्सनल गेन फॉर द श्योरिटी। उल्टा वो रिस्क लेता है लॉस के लिए। अगर लोन ही डिफॉल्ट कर गया तो उसको गारंटर को पे करना पड़ेगा। ठीक है। एंड नो मिसरिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 142 143 में ये है। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज भूल गया। वो जो सेक्शन 127, वो जो कंसिडरेशन है आपका सिक्योरिटी का, वो सेक्शन 127 में। 127 इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आ सकता है आपका, और जुडिशियरी एग्जाम में आपका एमसीक्यू भी आ सकता है कि वो जो सिक्योरिटी होता है उसका कंसिडरेशन क्या होता है। सिक्योरिटी का एक्चुअली कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। उसका बस इतना ही इंटरेस्ट है कि प्रिंसिपल डेटर को एक क्रेडिट मिल जाए, एक लोन मिल जाए। ठीक है। 142 143 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलते हैं नो मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रह सकता है ना। हम पढ़े थे ना, सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट होना चाहिए। 13 बोल रहा है कंसेंट और 14 बोल रहा है फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट हम किसे बोले? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में पांच चीज ना हो, क्या? उसमें कोई क्वेश्चन ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, फ्रॉड ना हो और मिस्टेक ना हो। तो ये सारे यहाँ पे ही है। अगर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता है। ये तो कॉमन सी बात है। एक दूसरा कंसेप्ट हमको गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में पढ़ना पड़ेगा, वो है कंटिन्यूइंग गारंटी। मतलब क्या? यहाँ पे जो हम एग्जांपल में देखे, यहाँ पे एक सिंपल गारंटी, मतलब एक सिंपल ट्रांजेक्शन था। ये एक बार लोन दिया, ये डिफॉल्ट किया, तो सिक्योरिटी इसको पे करेगा। ठीक है। लेकिन कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब क्या है? दो पार्टी हैं, ए और बी। सपोज ए और बी दो पार्टी हैं, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पे गारंटर है। ठीक है। वो क्या बोल रहा है ए को? वो एक श्योरिटी देता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनाता है इन दोनों के बीच में। ये बोल रहा है कि अगर बी कभी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, सपोज 1 ईयर, ओके, 1 ईयर में अगर बी ने डिफॉल्ट किया तो मैं वो कॉम्पेंसेट करूंगा। तो ये हुआ कंटिन्यू गारंटी। मतलब ये जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसका वैलिडिटी 1 ईयर तक कंटिन्यू करेगा। ठीक है। एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो कंटिन्यू करता है, जो गारंटी कंटिन्यू करता है, उसको बोलते हैं कंटिन्यू गारंटी। ओके। तो कंटिन्यू गारंटी कहाँ पे है आपका? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 129। ठीक है। रिवोकेशन, कंटिन्यूइंग गारंटी कब रिवोकेशन हो सकता है? अगर जो श्योरिटी है, जो गारंटर है, वो क्रेडिटर को एक रिटर्न नोटिस देगा कि मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूं ये कंटिन्यूइंग गारंटी से, तभी वो रिवोक हो जाएगा। वो सेक्शन 123 में दिया गया है आपका। तो हम गारंटी का केस लॉ देखें। केस लॉ में लैंडमार्क केस है दो आपका, बैंक ऑफ बिहार और दामोदर प्रसाद, और कालीचरण वर्सेस अब्दुल रहमान। बैंक ऑफ बिहार और दामोदर में क्या हुआ था? द क्रेडिटर इज नॉट बाउंड टू एग्जस्ट, यहाँ पे द क्रेडिटर इज नॉट बाउंड टू एग्जस्ट हिज रेमेडीज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर फर्स्ट। ठीक है। इसको हम जब गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे, क्योंकि दूसरा कुछ कंसेप्ट है जिसको समझने के बाद ये केस लॉ हमें समझ में आएगा। तो हम पहले दूसरा चीज देख लेते हैं, फिर हम आएंगे इस केस के ऊपर। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। ओके।
सेक्शन 124 टू 125 ये दो सेक्शन है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, और 126 से लेके 147 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये सेक्शन नंबर आपको याद रखना है। हम एक के बाद एक क्लॉज जब पढ़ेंगे तो हमको सारा सेक्शन याद रह जाएगा। तो पहले अभी के लिए ये याद रखो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सिर्फ दो सेक्शन है, 124 125। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी उसके बाद शुरू होता है 126 से, वो चलता है 147 तक। ठीक है। नंबर ऑफ पार्टीज हम पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी में दो ही पार्टी होता है, इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टी हैं, वो जो क्रेडिटर होता है और प्रिंसिपल डेटर होता है और श्योरिटी होता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है नेचर ऑफ लायबिलिटी। जो लायबिलिटी होता है वो कैसा होता है, आपका जो प्राइमरी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में होता है, वो जो लायबिलिटी अराइज होता है वो प्राइमरी लायबिलिटी है। मतलब क्या, ए और बी दो ही पार्टी है, तो बी को अगर कोई लॉस हुआ तो ए उसको कंपेंसेट करेगा, ये प्राइमरी लायबिलिटी है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में वो सेकेंडरी लायबिलिटी है। क्यों सेकेंडरी लायबिलिटी है, क्योंकि क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो श्योरिटी का केस आएगा, वो आके क्रेडिटर को पैसा लौटाएगा। तो यहाँ पे वो सेकेंडरी, अगर जो प्राइमरी बोरोवर है वो अगर डिफॉल्ट करेगा तो श्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी राइज होगा, इसलिए उसको बोलते हैं सेकेंडरी। लेकिन इंडेमनिटी में क्या है, वो प्राइमरी है। इवेंट लायबिलिटी अराइजेस, कब लायबिलिटी अराइज होता है, ऑन द हैपनिंग ऑफ द कंटीजेंसी। ओके। इंडेमनिटी में क्या हुआ, कंटीजेंसी मतलब जो लॉस होगा, अगर दूसरा पार्टी को कोई लॉस होता है तभी आपका सीन क्रिएट होता है वो लॉस को कंपेंसेट करने का। इसलिए ऑन हैपनिंग ऑफ द कंटीजेंसी ऑफ द लॉस, जब लॉस होगा तो कंपेंसेट करोगे। लेकिन यहाँ पे गारंटी में क्या है, ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। जब यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर जब डिफॉल्ट करता है तब गारंटर, जो श्योरिटी है, जो गारंटर है, वो आके पेमेंट करता है। तो इसीलिए ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर द इवेंट ऑफ लायबिलिटी अरेजेस। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब क्या, इंडेमनीफायर एक्ट्स वॉल्यूंटरीली, नॉट नेसेसरीली एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंडेमनीफायर। मतलब इंडेमनीफाइड पर्सन है, इंडेमनिटी होल्डर है, उसको कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट नहीं करना है। उसको लॉस हुआ तो इंडेमनीफायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उस लॉस को कंपेंसेट करे, उसमें कोई रिक्वेस्ट का जरूरत नहीं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या है, जो श्योरिटी है उसको तो कोई फायदा नहीं है, लोन तो उसे नहीं मिल रहा है, लोन प्रिंसिपल डेटर को मिल रहा है। तो प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी को आके रिक्वेस्ट करेगा कि भाई आजा तो मेरे लिए गारंटर बन जा, लेकिन क्योंकि बैंक मुझे लोन नहीं दे रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर्स गारंटर को श्योरिटी को रिक्वेस्ट करता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी में रिक्वेस्ट का कोई सीन नहीं है, वहां पे वो इम्प्लाइड होता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होता है। जब भी लॉस होता है उसको पेमेंट करना है, किसी को कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। राइट टू सू, कौन सू कर सकता है, इंडेमनीफायर कैन नॉट सू ए थर्ड पार्टी इन हिज ओन नेम। हम क्या पढ़े थे, इंडेमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हम पढ़े थे कि जब भी प्रॉमिसर या कोई थर्ड पार्टी के कोई एक्शन से इंडेमनिटी होल्डर को कोई लॉस होता है, सो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इफेक्ट में आता है। लेकिन इंडेमनीफायर जो है वो केस नहीं कर सकता वो थर्ड पार्टी के ऊपर। ठीक है। मतलब ऐसे समझते हैं इसको, यहाँ पे जो हम देखे थे, ए वॉज द इंडेमनीफायर एंड बी वॉज द इंडेमनिटी होल्डर। यहाँ पे वो जो लॉस हुआ, जो फ्यूचर लॉस बी को होना था, वो किसी थर्ड पार्टी सी की वजह से हुआ। सी के कोई एक्शन से, सी के कोई कंडक्ट से बी को लॉस हुआ, तो ए ने क्या किया, बी को कंपेंसेट किया। लेकिन ए सी को सू नहीं कर सकता कि तुम्हारी वजह से बी को लॉस हुआ और मुझे इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंडर उसको पेमेंट करना पड़ा, ऐसे बोल के ए सी को सू नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे वो जो क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को लोन देता है और प्रिंसिपल डेटर के लोन का डिफॉल्ट से श्योरिटी को रीपे करना पड़ता है क्रेडिटर को, यहाँ पे श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर में एक इम्प्लाइड इंडेमनिटी है, इसका कोई रोल नहीं था, ये डिफॉल्ट किया इसीलिए श्योरिटी को पे करना पड़ा। सो यहाँ पे एक इंडेमनिटी, इम्प्लाइड इंडेमनिटी है, प्रिंसिपल डेटर को बाद में श्योरिटी को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो जो इंडेमनीफायर है वो थर्ड पर्सन को शो नहीं कर सकता। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, मतलब जो भी इंडेमनिटी होता है, वो जो इंश्योरेंस का सारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक तरह का इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। और
आपका गारंटी का कौन सा है? हम पढ़े अभी बैंक लोन. बैंक लोन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर. तो इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो दो पार्टी होते हैं, एक होता है इंडेमनिफायर और एक होता है इंडेमनिटी होल्डर, उन दोनों का राइट्स क्या है और ड्यूटी क्या है. सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंडेमनिटी होल्डर. इंडेमनिटी होल्डर का राइट्स क्या है और उसी का वही इंडेमनिटी होल्डर का ड्यूटी क्या है, ये दो चीज पहले पढ़ेंगे. इंडेमनिफायर का हम बाद में पढ़ेंगे. सो सेक्शन 125 एक्चुअली हम पढ़े क्या, अभी जो इंडेमनिटी और गारंटी में हम डिफरेंस पढ़े, हम क्या सीखे वहां पे, इंडेमनिटी का दो ही सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, 124 एंड 125. 124 डिफाइंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, 125 सेज अबाउट द राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर. बस ये दोनों ही सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का. So section 125 says the act specifically lists the rights of the indemnity holder. The act मतलब कौन सा act? Indian Contract Act. Specifically 125 section 120 of Indian Contract Act specifically lists the right of the indemnity holder. When sued regarding a matter covered by the indemnity, the holder can recover. मतलब जो 125 में indemnity holder का जो rights है, वो rights कब arise होता है? जब कोई इंडेमनिटी का सीन आता है तो इंडेमनीफायर से उसको कंपेंसेशन मिलेगा, उसको उसका जो लॉस है उसको प्रोटेक्शन मिलेगा. तो कौन कौन से एस्पेक्ट में उसको प्रोटेक्शन मिलेगा? ऑल डैमेजेस, ऑल कॉस्ट्स, ऑल सम्स इन कॉम्प्रोमाइज. ये तीनों है, 1, 2 और 3. ये तीन चीज का प्रोटेक्शन मिलता है इंडेमनिटी होल्डर को. ऑल डैमेजेस मतलब कौन सा डैमेज? एनी अमाउंट दे आर कंपेल्ड टू पे इन ए सूट. ए और बी में कोई एग्रीमेंट हुआ था, हम जो एग्जांपल लिए थे यहाँ पे, ये जो इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें हम इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट को समझे थे. सो इस दोनों के कॉन्ट्रैक्ट से एक तीसरा आदमी है, उसको कोई लॉस हो गया, कोई नुकसान हो गया, तो बी को उसको भरपाई करना पड़ेगा. लेकिन ये बी इसको डी को क्यों पेमेंट कर रहा है? ये दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये कॉन्ट्रैक्ट की वजह से डी को कोई लॉस हुआ है. तो बी को अगर डी को कोई पेमेंट करना है तो ए का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बी को कंपेंसेट करे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बी को लॉस हुआ डी को पेमेंट करने में, इसलिए ए का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बी को पेमेंट करे. तो ये वाला था हम जो पढ़े, ये वही ऑल डैमेजेस. ऑल डैमेजेस कहां से वो डैमेज अरेज होता है? एनी अमाउंट दे आर कंपेल्ड, दे आर मतलब द इंडेमनिटी होल्डर आर कंपेल्ड टू पे इन ए सूट. कोई केस हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट को लेके और उसको पेमेंट करना पड़ा, उसको लॉस हुआ तो प्रॉमिसर को पे करना पड़ेगा वहां पे. ऑल कॉस्ट, ये जो सूट में उसको पेमेंट करना पड़ा, उसी केस में अगर कोई लिटिगेशन एक्सपेंसेस हुआ है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कुछ हुआ है, प्रोवाइडेड दे एक्टेड प्रूडेंटली एंड डिड नॉट कंट्रावेन द इंडेमनिफायर्स ऑर्डर्स. ओके, अगर बी का जो इंडेमनिटी होल्डर का कोई गलती नहीं है, वो प्रॉमिसर का जो इंडेमनिफायर का कोई कंडीशन ब्रेक नहीं किया है, फिर भी उसे कोई लॉस होता है, कोई केस होता है, तो उसमें जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ए को पेमेंट करना पड़ेगा, इंडेमनिफायर को पेमेंट करना पड़ेगा. ऑल सम्स इन कॉम्प्रोमाइज, वही किसी को कोई लॉस हुआ है और बी को कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, कुछ पैसा देना पड़ रहा है, तब भी वो जो पैसा देना पड़ेगा वो तो लॉस ही है ना. वो लॉस को कौन कंपेंसेट करेगा? इंडेमनिफायर कंपेंसेट करेगा, ए कंपेंसेट करेगा. तो ये तीनों चीज जो राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर है, किन तीनों चीज पर उसका राइट्स है, उसको प्रोटेक्शन मिलता है अगेंस्ट ऑल डैमेजेस, ऑल कॉस्ट्स, ऑल सम इन कॉम्प्रोमाइजेस. ओके, लेकिन उसका कुछ ड्यूटी भी रहता है. अगर हम राइट्स एंजॉय करते हैं तो हम हमारा कुछ ड्यूटी भी रहता है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी है ना, हम फंडामेंटल राइट्स यूज करते हैं और हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज भी है. वैसे इंडेमनिटी होल्डर का जो राइट्स है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस, उसका कुछ ड्यूटी भी है. लेकिन duty of the indemnity holder has not been properly defined in any section, because indemnity contract has only two sections in Indian Contract Act, 124 and 125. 124 defines the contract of indemnity, 125 tells about the rights of the indemnity holder. So duty of the indemnity holder exists where? Within the section 125, where the right has been defined, duties can be implied from those sections only. यहाँ पे एक दो चीज हम पढ़ेंगे, ड्यूटी टू एक्ट प्रूडेंटली, ड्यूटी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, ड्यूटी टू मिटिगेट लॉस. ये तीनों हम मीनिंग निकाल के समझ सकते हैं.
यहाँ पे लिखा गया है जो 125 का जो प्रोवाइजो है उन्हीं में से वी कैन डिराइव द मीनिंग। ड्यूटी टू एक्ट प्रूडेंटली मतलब क्या? ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसमें कुछ इंडेमनिटी का क्लॉज है, तो बी को प्रूडेंटली काम करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट का कोई क्लॉज वायलेट हो। अगर बी कोई कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज वायलेट करता है फिर उसको कोई लॉस होता है तो ए का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उसको भरपाई करने का। So the indemnity holder must act prudently. Okay, and duty to follow the instructions. जो भी whatever the terms exist in the contract between the indemnifier and the indemnity holder has the responsibility to obey all the conditions. If he doesn't obey the conditions, then he will not be entitled to the protection against the losses he will be incurring. Okay, duty to mitigate loss. अगर इंडेमनिटी होल्डर को कोई लॉस हो रहा है तो उसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो लॉस को मिटिगेट करना, वो लॉस को घटाने के लिए अपनी तरफ से कोई कोशिश करे। वो ऐसे आराम से बैठ जाएगा, अरे इंडेमनीफायर तो है, मेरा लॉस होगा तो वो तो कंपेंसेट करेगा, मेरा कोई काम नहीं, मैं आराम से बैठूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। कोर्ट्स स्पेसिफिकली डिफरेंट केसेस में यही पूरा क्लियरली स्टेट किए हैं कि अगर आप इंडेमनिटी होल्डर हैं, आपको कोई लॉस हो रहा है, तो आप इंडेमनिटी है और मुझे प्रोटेक्शन मिल जाएगा, मुझे कंपेंसेशन मिल जाएगा, ऐसे सोच के बैठ जाइए मत। सपोज एक एग्जांपल देते हैं, एक फायर क्रैकर का बिजनेस है, एक सप्लायर है फायर क्रैकर, वो पटाखे वटाखे जो होते हैं, और एक डिस्ट्रीब्यूटर है। वो सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है वो फायर क्रैकर का सेल को लेके, और एक गोडाउन है वहां पे वो डिस्ट्रीब्यूटर सारे फायर क्रैकर लाके रखा है। सप्लायर ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है डिस्ट्रीब्यूटर को फायर क्रैकर बेचने के लिए, वो जो कॉन्ट्रैक्ट में एक इंडेमनिटी का क्लॉज है, वो सप्लायर बोला है कि तुम्हारे गोडाउन में अगर कोई मिसहैप हो गया, कहीं आग लग गया, कुछ लॉस हो गया, तो मैं इसको कंपेंसेट करूंगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर को पटाखे बेच रहा है, लेकिन रात को वहां पे आग लग गया और पटाखे जल रहे हैं, और वो शांति से बैठा है, अरे मेरा तो कोई काम नहीं है, वो तो इंडेमनिटी का क्लॉज है, अगर कुछ लॉस हो रहा है तो इंडेमनीफायर जो सेलर है, वो जो सप्लायर है, वो तो मुझे कंपेंसेट करेगा। नहीं, आपको खुद से भी कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, आपको फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा, आपको वो फायर एक्सटिंग्विश करना पड़ेगा, आपको एफर्ट देना पड़ेगा। अब बस चुपचाप चुपचाप बैठेंगे तो नहीं होगा। सो वही बोल रहे हैं कि ड्यूटी टू मिटिगेट लॉस, आपका जो भी लॉस हो रहा है, जो भी फ्यूचर लॉस होने वाला है आपको, उसको मिटिगेट करने के लिए खुद से कुछ तो कोशिश करना पड़ेगा। कोशिश करने के बाद भी अगर आपको लॉस होता है तो इंडेमनीफायर का रिस्पॉन्सिबल बनता है वो आपको कंपेंसेट करे। ठीक है। सो द ड्यूटी ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर आर ड्यूटी टू एक्ट प्रूडेंटली। ठीक है, वो प्रूडेंटली काम करे, समझदारी से काम करे। ड्यूटी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंडेमनीफायर का इंस्ट्रक्शन है इन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट उसको अवॉइड करे, उसको माने। और ड्यूटी टू मिटिगेट लॉस, जो भी लॉस होगा उसको मिटिगेट करने के लिए भी एफर्ट डालें। बस चुपचाप बैठे, ये मत सोचकर कि उसको तो प्रोटेक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी। अभी हम पढ़ी क्या, इंडेमनिटी होल्डर का क्या राइट्स है और क्या ड्यूटी है। तीन राइट्स थे, तीन ड्यूटी थे। ठीक है, रिवाइज कर ले एक बार। राइट्स किसके अगेंस्ट थे? प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल डैमेजेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल कॉस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल सम्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज। ड्यूटी क्या थे? ड्यूटी टू एक्ट प्रूडेंटली, ड्यूटी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, ड्यूटी टू मिटिगेट द लॉस। ये थे इंडेमनिटी होल्डर का। सो इंडेमनीफायर also enjoys some rights and indemnifier also has some duties. So पढ़ते हैं इसको। द एक्ट इज साइलेंट ऑन द एक्ट इज साइलेंट ऑन दीज राइट्स, मतलब इंडेमनीफायर का राइट का कोई स्पेसिफिक क्लॉज नहीं है। ठीक है। एक बात समझो, ए और बी है, दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट है। ए का जो राइट्स है वो बी का ड्यूटी है, और बी का जो राइट्स है वो ए का ड्यूटी है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो म्यूचुअलिज्म होता है ना। अगर दोनों में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो एक पार्टी का जो राइट होता है वो दूसरी पार्टी का ड्यूटीज होता है, एंड वाइस वर्सा, दूसरी पार्टी का जो राइट है वो पहले पार्टी का ड्यूटी बनता है। सो यहाँ पे वही लिखा है, द एक्ट मतलब द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साइलेंट ऑन दिस राइट्स, मतलब इंडेमनीफायर का राइट्स का कोई स्पेसिफिक क्लॉज, कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, लेकिन हम मीनिंग ये निकाल सकते हैं कि जो इंडेमनिटी होल्डर का ड्यूटी बनता है वही तो इंडेमनीफायर का राइट बनेगा ना। तो बट दे आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन मतलब क्या? अगर दो पार्टी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। सपोज एक तीसरा पार्टी है कोई सी। ओके। सो
ए बी को क्या किया, एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, लेकिन इसमें एक इंडेमनिटी का क्लॉज भी है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी यहाँ पे है। लेकिन सी के कोई एक्शन की वजह से बी को कुछ नुकसान हो गया, तो हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के डेफिनेशन में क्या पढ़े थे, प्रोमिसर का कोई कॉन्ट्रैक्ट से या फिर कोई थर्ड पार्टी का कोई कॉन्ट्रैक्ट से अगर प्रोमिसी को कोई लॉस होता है तो वहां पे कंपेंसेशन का सीन बनता है, प्रोटेक्शन का सीन बनता है। यहाँ पे सी एक थर्ड पर्सन है, उसका कोई एक्शन से बी को लॉस हो गया, तो एक्शन सी ने किया, लेकिन कंपेंसेट कौन करेगा, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है, ए और बी के बीच में, तो ए बी का वो जो लॉस है उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको कंपेंसेट करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ए का गलती कोई नहीं था, सी के गलती की वजह से ए को लॉस हुआ, तो ए और सी में एक इम्प्लाइड इंडेमनिटी बनता है, ए और सी में एक इम्प्लाइड इंडेमनिटी बनता है। सी का ओब्लिगेशन बनता है कि वो ए को कंपेंसेट करे, ठीक है। ए ने कंपेंसेट किया बी को, क्यों, सी के एक्शन की वजह से, इसीलिए सी का मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ए को कंपेंसेट करे, ठीक है। सो यहाँ पे ए तो कंपेंसेट कर दिया बी को, लेकिन ए हैज एन एंटाइटलमेंट फ्रॉम सी, दिस इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ सब्रोगेशन, ठीक है। इसको हम सिक्योरिटी का जब पढ़ेंगे, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां पे थ्योरी ऑफ सब्रोगेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो राइट ऑफ सब्रोगेशन, ये एक राइट बनाना, ये जो इंडेमनीफायर है इसका एक राइट बनाना, क्योंकि इसको लॉस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसका कोई गलती नहीं था, थर्ड पार्टी की गलती की वजह से उसको लॉस हुआ, तो उसका राइट बनता है कि वो थर्ड पार्टी वो इंडेमनीफायर को वो पेमेंट करे, वो लॉस का प्रोटेक्शन दे, कंपेंसेशन दे। राइट टू रिफ्यूज पेमेंट, इंडेमनीफायर कब रिफ्यूज कर सकता है पेमेंट करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए, जब इंडेमनिटी होल्डर कुछ गलती करे, वही है, इफ द लॉस कॉज्ड इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और ड्यू टू द इंडेमनिटी होल्डर्स ओन नेग्लिजेंस अनलेस कवर्ड, जो कवर्ड नहीं है वहां पे इंडेमनीफायर मना कर सकता है पेमेंट करने के लिए। वही जो हम पढ़े थे यहाँ पे, ड्यूटी में पढ़े थे ना हम, ड्यूटी ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर में यहाँ पढ़े थे कि वो उसको मानना पड़ेगा, वो सारा जो भी इंस्ट्रक्शन है उस सारे इंस्ट्रक्शन को मानना पड़ेगा, अगर वो नहीं माना, कुछ गलती किया, उसके वजह से हो गया कुछ लॉस, तो राइट टू रिफ्यूज है, इंडेमनीफायर रिफ्यूज कर सकता है, मैं नहीं देता, तुम गलती किया, मैं क्यों भुगतूं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्यूटी ऑफ द इंडेमनीफायर, ये तो हम पढ़े क्या, राइट ऑफ द इंडेमनीफायर। ड्यूटी ऑफ द इंडेमनीफायर मतलब क्या हो सकता है, इंडेमनीफायर का जो ड्यूटी है वो इंडेमनिटी होल्डर का राइट्स है, जो भी इंडेमनिटी होल्डर का राइट्स में हम पढ़े वो इंडेमनीफायर का ड्यूटी बन जाएंगे। ड्यूटी टू मेक गुड द लॉस, मेक गुड द लॉस मतलब जो भी लॉस हुआ है उसको कंपेंसेट करो, उसको गुड करो, उसको ठीक करो। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द प्राइमरी ड्यूटी इज टू कंपेंसेट द लॉस कॉज्ड बाय द इवेंट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ये तो कॉन्ट्रैक्ट का इंडेमनिटी का डेफिनेशन ही है ना, आपका जो भी लॉस होता है इंडेमनिटी होल्डर को, वो इंडेमनीफायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कंपेंसेट करें। ड्यूटी टू पे व्हेन लायबिलिटी इज एब्सोल्यूट, लायबिलिटी अगर कोई फिक्स हो गया है, हम जो पढ़े थे जो गजानन यहाँ पे ये जो गजानन मोरेश्वर और मोरेश्वर मदन मंत्री, हम जब थ्योरी ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का डेफिनेशन हम पढ़े थे, तब ये केस पढ़े थे, वहां पे क्या हुआ था, वहां पे जो डिफेंडेंट था वो प्लेंटिफ को बोला कि तुम तो अभी तक पेमेंट नहीं किए हो, तुम्हें को तो कोई लॉस अभी तक हुआ नहीं है, तो मैं क्यों पेमेंट करूं तुम्हें, मैं क्यों कंपेंसेट करूं, लेकिन कोर्ट ने क्या बोला, नहीं नहीं, वो जो लॉस बन रहा है वो इमिनेंट है, वो एब्सोल्यूट है, वो लॉस होना ही है उसको, तो वो पेमेंट करने से पहले आपको पेमेंट करना है उनको, वो लॉस को कंपेंसेट करना है, बिकॉज वो कंपेंसेट सर्टेन है, वो तो फिक्स हो गया है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द श्योरिटी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। हम इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में हम पढ़े राइट्स और ड्यूटीज किसका, इंडेमनिटी फायर का और इंडेमनिटी होल्डर का, दोनों का। वैसे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो श्योरिटी होता है उसका भी कुछ राइट्स होता है, उसका भी कुछ ड्यूटी होता है, उसको हम सेपरेट पढ़ेंगे। सो पहले पढ़ेंगे हम राइट्स ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी का क्या राइट्स है, आपको मतलब याद होगा कि श्योरिटी क्या करता है, श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर का रिस्क खुद के सर पे लेता है, ठीक है। सो उसका राइट ऑफ सब्रोगेशन बनता है, यहाँ पे हम इसको डिटेल देखेंगे, मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ पूरा।
देखिए यहां पे कौन था, क्रेडिटर, यहां पे कौन था, प्रिंसिपल डेटर, और यहां पे था श्योरिटी, और जिसको हम गारंटर भी बोलते हैं। ठीक है, क्रेडिटर से लोन लिया प्रिंसिपल डेटर, लेकिन उसको रिपेमेंट नहीं किया। ठीक है, तो जब भी बैंक किसी को लोन देता है तो उसके पास क्या रखता है, कुछ मॉर्गेज रखता है। ठीक है, कोई लैंड हो गया, कोई गोल्ड वगैरह हो गया, वैसे कुछ मॉर्गेज रखता है। लेकिन ये अगर वो डेट को रिपे नहीं कर रहा है तो कौन रिपे करेगा, श्योरिटी रिपे करेगा। तो ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल डेटर द पेमेंट इज डन बाय द श्योरिटी, सो द सिक्योरिटी which ever has been kept near the creditor by the principal debtor, surety gains the ownership, टेम्पररी ओनरशिप ऑफ द मॉर्गेजेस। मतलब प्रिंसिपल डेटर ने अपना गोल्ड गिरवी रख के क्रेडिटर से, बैंक से लोन लिया। ठीक है, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर पाया, वहां पे एक गारंटर था जो कि पेमेंट कर दिया। तो जो गोल्ड है वो किसके पास था, बैंक के पास था। लेकिन अभी वो गोल्ड पर किसका हक है, श्योरिटी का हक है, क्योंकि वो पेमेंट खुद वो अपने आप से किया है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। मतलब एक ऐसा कोई कंडीशन आएगा जिस कंडीशन में आप कुछ चीज का ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी था, कोई घर हो गया, कोई लैंड हो गया, कोई गोल्ड हो गया, जो गिरवी रखा था लोनी ने, जिसका ओनरशिप टेम्पररली बैंक के पास था, वो टेम्पररी ओनरशिप अब श्योरिटी के पास चला जाएगा, क्योंकि वो पेमेंट किया है वो लोन का। ये जो ट्रांसफर ऑफ टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ठीक है, सो ये एक श्योरिटी का राइट है ना, क्योंकि उसका तो कोई मतलब नहीं था, वो रिस्क लेके प्रिंसिपल डेटर का जो लोन रिपे कर रहा है, तो उसको कुछ तो प्रिविलेज मिलना चाहिए ना। तो राइट ऑफ सब्रोगेशन आर्टिकल 150 इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कहाँ पे है, आर्टिकल 150। अपन पेइंग द डेट, अपन पेइंग द डेट मतलब जब डिफॉल्ट हो गया, प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट हो गया, तो डेट किसको क्लियर करना है, गारंटर को। तो जो गारंटर वो डेट को क्लियर करता है रिस्क लेके, द श्योरिटी अपन पेइंग द डेट, द श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर एंड एक्वायर्स ऑल राइट्स द क्रेडिटर हैड अगेंस्ट द डेटर। जो भी क्रेडिटर का डेटर के ऊपर राइट्स था, वो सारा राइट्स ट्रांसफर हो गया किसको, श्योरिटी को। क्यों, क्योंकि उसने पेमेंट किया है, लोनी ने पेमेंट नहीं किया है, प्रिंसिपल डेटर ने पेमेंट नहीं किया है। दूसरा राइट क्या है श्योरिटी का, राइट टू इंडेमनिटी, सेक्शन 145। वो जो हम पहले एग्जांपल में पढ़े थे, अगर श्योरिटी पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, तो प्रिंसिपल डेटर का एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जिसको बोलते हैं हम इम्प्लाइड इंडेमनिटी। ओके, ये पेमेंट नहीं कर पाया, तो पेमेंट कौन किया, इसने पेमेंट किया। तो प्रिंसिपल डेटर का एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, एक इंडेमनिटी, इम्प्लाइड इंडेमनिटी बनता है कि वो बाद में वो पेमेंट उस सिक्योरिटी को कर दे। इसको बोलते हैं इम्प्लाइड इंडेमनिटी। नेक्स्ट है आपका, ये जो राइट्स ऑफ सिक्योरिटी है, वो हम पहला राइट पढ़े क्या, ये पढ़े हम राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, जिसमें आपका राइट ऑफ सब्रोगेशन है और राइट ऑफ इंडेमनिटी है। श्योरिटी का राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर भी होता है, और श्योरिटी का राइट अगेंस्ट को श्योरिटी भी होता है। ठीक है, तो आपका जो राइट्स ऑफ श्योरिटी है, राइट्स ऑफ श्योरिटी तीन पॉइंट्स में होता है। पहला पॉइंट है ये वाला, फर्स्ट राइट अगेंस्ट द डेटर, सेकंड होता है राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, एंड थर्ड होता है राइट अगेंस्ट द को श्योरिटी। तीन तरह का राइट्स होता है श्योरिटी का। एक वे हम तो पहला वाला देख लिए, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट जो राइट्स है वो हम डिस्कस कर लिए, राइट्स ऑफ सब्रोगेशन एंड राइट्स ऑफ इंडेमनिटी, सेक्शन 140 एंड सेक्शन 145। ये दोनों भी आपको याद रखना है। राइट ऑफ सब्रोगेशन है सेक्शन 140, राइट ऑफ श्योरिटी है, राइट ऑफ इंडेमनिटी है आपका सेक्शन 145। देन सेकंड आता है आपका राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर। श्योरिटी का क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या राइट है, श्योरिटी का क्रेडिटर के अगेंस्ट पहला राइट है राइट टू सिक्योरिटी।
जो भी प्रिंसिपल डेटर का सिक्योरिटी है, कोई लैंड है, कोई घर है, कोई गोल्ड है, जो गिरवी रख के लोन लिया है, वो राइट, वो सारा राइट्स श्योरिटी के पास ट्रांसफर हो जाता है, जो थ्योरी ऑफ सब्रोगेशन में हम पढ़े थे। ठीक है। और क्रेडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो जो सिक्योरिटी प्रिंसिपल डेटर का उसके पास है वो उसको सेफली रखे। ठीक है। क्योंकि अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है एंड श्योरिटी रीपेज द लोन, देन द क्रेडिटर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रांसफर द टेम्परली ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द सिक्योरिटी टू द श्योरिटी। Okay, so it is the right of the surety against the creditor against the securities that has been placed or that has been mortgaged before the creditor by the principal debtor. नेक्स्ट है राइट टू सेट ऑफ। राइट टू सेट ऑफ मतलब क्या? वो जो क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर है उन दोनों के बीच में कोई कंडीशन है, कोई मतलब ऐसा कंडीशन आएगा तो इतना डिस्काउंट हो जाएगा, वो जो डिस्काउंट वाला क्लॉज है, वो जो सेटअप वाला क्लॉज है, कोई ऑफसेट क्लॉज है, तो वो सारे बेनिफिट्स भी श्योरिटी को भी आता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द को श्योरिटीज। को श्योरिटीज मतलब क्या? यहाँ पे हम कैसे पढ़े थे, यहाँ पे क्रेडिटर था, यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर था और यहाँ पे था आपका श्योरिटी। लेकिन ये वाला केस में यहाँ क्या होगा, यहाँ पे मतलब एक से ज्यादा श्योरिटी होंगे, मतलब श्योरिटी वन, श्योरिटी टू, श्योरिटी थ्री, ऐसा हो सकता है। ये जो क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को एक लोन दिया था, उसका जो श्योरिटी है ये तीनों मिलके दिए हैं। ठीक है। ये तीनों मिलके बोल रहे हैं कि अगर ये डिफॉल्ट कर गया, ये नहीं दे पाया, तो हम क्या करेंगे, हम तीनों मिलके आपको रिफंड करेंगे, हम गारंटी देते हैं। यहाँ पे जो गारंटर है वो तीन गारंटर है, दो हो सकते हैं, मोर देन वन हो सकते हैं। ठीक है। दो तीन कुछ भी हो सकते हैं। सो सेक्शन 146 क्या बोल रहा है? राइट टू कंट्रीब्यूट, राइट टू कंट्रीब्यूशन मतलब अगर तीनों मिलके कोई गारंटी देते हैं, अगर ये डिफॉल्ट कर गया, सपोज 3 लाख का लोन था और प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट कर गया, तो श्योरिटी वन, श्योरिटी टू, श्योरिटी थ्री, हर किसी का कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? 1 लाख। S1 भी 1 लाख देगा, एस टू भी 1 लाख देगा और S3 भी 1 लाख देगा। वो तीनों मिलके वो क्रेडिटर को 3 लाख देंगे। और दूसरा सेक्शन 147 क्या बोलता है? लायबिलिटी इन डिफरेंट सम्स। अगर ये जो गारंटी दिए थे S1, S2, S3, वही एग्जांपल लेते हैं, वो द लोन वाज ऑफ 3 lakhs। S1 admits to cover the risk of 2 lakhs and S2 and S3 combinedly cover the risk of 1 more lakhs। So अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है यहाँ पे, तो S1 2 लाख देगा, S2 50,000 देगा और S3 50,000 देगा। उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, वो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग करके बैठे हैं कि हम डिफरेंट सम देंगे। सो 146 बोल रहा है कि अगर तीनों का सेम सेम कंट्रीब्यूशन रहेगा, और 147 बोलता है कि मल्टीपल गारंटर अगर हैं, मल्टीपल श्योरिटी हैं, तो उनका डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीब्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट है आपका ड्यूटी। ड्यूटी ऑफ द श्योरिटी। हम क्या पढ़े? राइट्स ऑफ द श्योरिटी पढ़े। तीन राइट्स पढ़े। एक होता है राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, जिसमें सब्रोगेशन और इंडेमनिटी आता है। दूसरा आता है आपका राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर ऑन सेटअप्स एंड ऑन सिक्योरिटीज। तीसरा आता है आपका राइट अगेंस्ट को सिक्योरिटीज। वहां पे सेम सेम कंट्रीब्यूशन हो सकता है और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है। नेक्स्ट आया आपका ड्यूटीज। ड्यूटीज ऑफ द सिक्योरिटी। राइट्स होगा तो ड्यूटी ऑब्वियसली होगा। तो ड्यूटीज में क्या है? को एक्सटेंसिव लायबिलिटी, सेक्शन 128। ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 128 क्या बोल रहा है? सेक्शन 128 बोल रहा है कि जो भी प्रिंसिपल डेटर का लायबिलिटी है, वही सेम लायबिलिटी श्योरिटी का है। मतलब अगर प्रिंसिपल डेटर ने, यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर ने अगर 3 लाख का लोन लिया, तो गारंटर का भी लायबिलिटी 3 लाख ही है, ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज्यादा, कुछ भी नहीं। वही जितना लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर का है, उतना ही लायबिलिटी आपका श्योरिटी का भी है। वो बोलता है सेक्शन 128, उसको बोलते हैं को एक्सटेंसिव लायबिलिटी। को एक्सटेंसिव मतलब क्या? दोनों का एक्सटेंशन सेम है। ठीक है। दोनों का लायबिलिटी सेम है। प्रिंसिपल डेटर का जितना लायबिलिटी है, आपका श्योरिटी का भी उतना ही लायबिलिटी है। ठीक है। और ड्यूटी टू पे अपॉन डिफॉल्ट, ये तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का फाउंडेशन मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है, तो श्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है रीपे करने का। ठीक है। सो आपका ये दोनों ड्यूटी है। तो हम अभी तक क्या पढ़े? हम पढ़े इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सेक्शन 124, 125 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
देन हम पढ़े कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, सेक्शन 126 से लेके सेक्शन 147 तक। देन उसके अंदर हम क्या पढ़े, केस लॉ पढ़े इंडेमनिटी का और गारंटी का। और उसके बाद हम पढ़े राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द इंडेमनीफायर ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द श्योरिटी। ओके, हम ये भी पढ़े कि आपका इंडेमनिटी और गारंटी के बीच में डिस्टिंक्शन, डिफरेंस क्या है इंडेमनिटी और गारंटी के बीच में। ठीक है, अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ गारंटी। ठीक है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो कितना तरह का होते हैं। ये आपको कहीं भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक ऐसा स्पेसिफिकली कैटेगराइजेशन सेग्रीगेशन कहाँ पे नहीं है। हम कंसेप्चुअल इसको इसे देख सकते हैं। हम तीन सेगमेंट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन स्कोप, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द पार्टीज एंड बेस्ड ऑन लाइबिलिटी और कंडीशन। ठीक है, सो बेस्ड ऑन स्कोप, बेस्ड ऑन स्कोप कितना तरह के कॉन्ट्रैक्ट है। एक होता है आपका स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, किसी एक पर्पस के लिए। कंटिन्यूइंग सॉरी स्पेसिफिक गारंटी मतलब क्या, कोई एक कंडीशन में गारंटी देते हैं। कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब क्या, मल्टीपल ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी देते हैं। एक पर्टिकुलर पीरियड, सपोज एक महीने के लिए और एक साल के लिए, और कोई पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर, मतलब 10 लाख अमाउंट तक मैं गारंटी लेता हूँ, ऐसा कोई होता है। तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन में अगर गारंटी होता है तो उसको कंटिन्यूइंग गारंटी बोलते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक एक ही ट्रांजैक्शन में गारंटी होता है तो उसको स्पेसिफिक गारंटी बोलते हैं। ठीक है, वैसे बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द पार्टीज, जो पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनका नेचर को लेके भी हम गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है पर्सनल गारंटी, एक होता है कॉर्पोरेट गारंटी, एक होता है बैंक गारंटी। ओके, पर्सनल गारंटी मतलब क्या, एन इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल अगर गारंटी हो लेता है कि कोई दूसरा पार्टी का डिफॉल्ट करने से मैं पेमेंट करूंगा, सो इट इज एन इंडिविजुअल गारंटी, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। लेकिन अगर कोई कंपनी गारंटी लेता है तो बन जाता है कंपनी कॉर्पोरेट गारंटी। अगर कोई बैंक गारंटी लेता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बैंक गारंटी। और भी है नेचर ऑफ पार्टीज को लेके, परफॉर्मेंस गारंटी, फाइनेंशियल गारंटी, एडवांस पेमेंट गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी मतलब क्या, परफॉर्मेंस गारंटी इंश्योर्स ए प्रोजेक्ट और ए कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड एज अग्रीड। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट जितना टाइम में फिनिश होना चाहिए उतना टाइम में वो टाइम स्टिपुलेशन को स्ट्रिक्टली अध्ययर करे, और जो भी कंडीशन है वही कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसे बोलते हैं परफॉर्मेंस गारंटी। उसका जो गारंटी लेता है उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस गारंटी। और फाइनेंशियल गारंटी क्या, सिक्योर्स द रिपेमेंट ऑफ ए डेट, जो कि नॉर्मल लोन के केस में है। अगर कोई मतलब एक पार्टी takes a loan from a bank, then a guarantor comes and take the risk that if the loanee defaults the loan, then the surety will be taking the risk. The surety will be paying the debt. Okay. Advance payment guarantee secures the refund of advance payments if it is not done. अगर कोई एडवांस पेमेंट होगा, वो एडवांस पेमेंट में कोई डिफॉल्ट होगा, तो उसका जो गारंटी लेते हैं उसको बोलते हैं एडवांस पेमेंट गारंटी। देन आपका तीसरा क्लासिफिकेशन आ गया बेस्ड ऑन लायबिलिटी और कंडीशन। इसमें क्या है, लिमिटेड गारंटी, अनलिमिटेड गारंटी, कंडीशनल गारंटी, अनकंडीशनल गारंटी। मतलब लिमिटेड गारंटी मतलब क्या, केप्ट एट ए स्पेसिफिक अमाउंट। सपोज किसी ने लोन लिया है 2 लाख का, लेकिन जो गारंटर है वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, मैं 2 लाख का गारंटी नहीं ले सकता हूँ, मैं 1 लाख का गारंटी लूंगा। तो इसको बोलते हैं लिमिटेड गारंटी। मतलब जितना भी आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो पूरा अमाउंट का गारंटी ना लेके आप कोई छोटा सा अमाउंट का, उसका कोई कंपोनेंट, उसका कोई पार्ट का गारंटी लेते हैं, तो उसको बोलते हैं लिमिटेड गारंटी। अनलिमिटेड गारंटी मतलब कवर्स द एंटायर डेट, पूरा डेट। सपोज किसी ने 10 लाख का कोई लोन लिया एंड द गारंटर इज सेइंग दैट आई एम टेकिंग द रिस्क ऑफ द पूरा 10 लाख का, सो ये हो गया आपका अनलिमिटेड गारंटी। देन कंडीशनल गारंटी, ओनली एनफोर्सेबल अपन स्पेसिफिक कंडीशंस बीइंग मेट। अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन होगा तो तभी मैं गारंटी लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा, तो उसको बोलते हैं कंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब कोई कंडीशन नहीं, डिफॉल्ट हुआ तो मैं पे करूंगा, कोई कंडीशन नहीं है, उसको बोलते हैं अनकंडीशनल गारंटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका काइंड्स ऑफ गारंटी। इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं आपका लॉन्ग टाइम एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए, पर्टिकुलरली इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, आपको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। नेक्स्ट है आपका डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। ये हमारा इंडेमनिटी और गारंटी का लास्ट पार्ट है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। एक्चुअली डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी मतलब क्या है, ऐसा कौन सा कंडीशन है जब
श्योरिटी को उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसका जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी उसको फ्री कर दिया जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। ठीक है, वो कब होगा? डिस्चार्ज मतलब व्हेन ही विल बी मेड फ्री। ओके, सो बहुत सारे कंडीशंस हैं जहां पे देखिए श्योरिटी का काम क्या होता है। श्योरिटी का काम होता है जब भी प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर को रिफंड नहीं करता है, अपना परफॉर्मेंस जो प्रॉमिस्ड परफॉर्मेंस वो नहीं करता है, तो श्योरिटी क्या करता है, वो जो प्रॉमिस किया गया था उसको वो खुद निभाता है, या फिर जो भी लायबिलिटी अराइज होता है वो लायबिलिटी को वो देता है अगर डिफॉल्ट हो गया प्रिंसिपल डेटर से। सो उसका कोई अपना कंसिडरेशन नहीं होता है। हम जैसे पढ़े थे यहाँ पे, मैं आपको बोला था, आपको याद होगा, यहाँ पे सेक्शन 127 में कंसिडरेशन क्या है, मैं बोला था ना, ये इंपॉर्टेंट है। श्योरिटी, कंसिडरेशन ऑफ श्योरिटी इज नॉट नेसेसरी, एनीथिंग डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी। ओके, तो जो श्योरिटी बनता है उसका अपना कोई बेनिफिट नहीं होता है, जो भी प्रिंसिपल डेटर को लोन मिल जाए वही उसका इंटेंशन है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं फेवर्ड डेटर। जो डेट लेता है, जो लोनी होता है, उसको डेटर बोलते हैं, वो प्रिंसिपल डेटर बोलते हैं, लेकिन श्योरिटी को फेवर्ड डेटर बोलते हैं क्योंकि वो चैरिटी करता है। चैरिटी एग्जैक्ट सही वर्ड नहीं है, लेकिन वो बिना कोई प्रॉफिट की रिस्क लेता है, इसलिए उसे कुछ मतलब ऐसा कुछ फैसिलिटी उसको देना चाहिए ना, कि वो तो सेल्फलेसली काम कर रहा है, तो उसको कुछ सुविधा मिले। ठीक है, तो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी वही चीज है। आपका ऐसा बहुत सारे कंडीशन है जिस कंडीशन में श्योरिटी का जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी खत्म हो जाता है, वो लायबिलिटी से फ्री हो जाता है। कब होता है? डिस्चार्ज बाय रिवोकेशन, discharge by conduct of the creditor, discharge by invalidation of the contract. Broadly, we can categorize three cases, three scenarios in which the surety's liability gets discharged. The surety sets free. Okay. So section 10 में क्या है? सॉरी, सेक्शन 130, सेक्शन 130 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा है कि बाय नोटिस। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, बाय नोटिस सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी डिस्चार्ज नहीं होते हैं, मतलब गारंटर जो श्योरिटी होता है उसका डिस्चार्ज नहीं है, ये सिर्फ आपका कहाँ होता है? कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। जो आपका डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी होता है, श्योरिटी कब फ्री होता है? बाय रिवोकेशन, वो अपना रिवोक करके मतलब कैंसिल करके फ्री हो सकता है, लेकिन कौन से कॉन्ट्रैक्ट में? कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। ओके, ठीक है, स्पेसिफिक में नहीं होगा। हम कैटेगरी पढ़े थे ना, हम दोनों कैटेगरी पढ़े थे, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट और कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द, यहाँ पे हम पढ़े थे, डिपेंड बेस्ड ऑन द स्कोप, स्पेसिफिक है और कंटिन्यूइंग है। ये जो कंटिन्यूइंग है इसके अंदर ही आपको एक फैसिलिटी मिलता है, आप क्रेडिटर को एक नोटिस दे सकते हैं और नोटिस देके आप फ्री हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका बाय डेथ ऑफ द श्योरिटी। जो गारंटर था अंडर सेक्शन 131, जो आपका जो श्योरिटी था उसका डेथ हो गया, उसका डेथ हो गया तो क्या होगा? श्योरिटी का डेथ हो गया तो वो तो खत्म हो गया ना, तो डिस्चार्ज हो गया तो उसका जो लायबिलिटी था। नेक्स्ट है आपका डिस्चार्ज बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। ओके, सो कब कब क्रेडिटर का ऐसा कोई काम, क्रेडिटर अगर ऐसा कोई काम करता है जिससे कि आपका जो श्योरिटी होता है उसका डिस्चार्ज हो जाता है, उसको फ्री किया जाता है। कब? वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट के कोई टर्म में कोई वेरिएशन हो गया। सपोज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक क्लाइंट का मॉर्गेज था, उसके अगेंस्ट में क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को 10 लाख लोन दिया था, लेकिन बाद में उनके वो जो डिफॉल्ट हो गया, वो जब भी प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट किया, क्रेडिटर को पता चला कि वहां पे उन दोनों के बीच में कोई दूसरा कंडीशन भी था जो क्रेडिटर को पता नहीं था, और वो जो क्रेडिटर था वो कोई कंडीशन चेंज कर दिया विदाउट द नॉलेज ऑफ द श्योरिटी। इन दैट केस द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी गेट्स डिस्चार्ज, क्योंकि आप बाद में कुछ चेंज नहीं कर सकते। जो भी श्योरिटी का नॉलेज में है वही चीज का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो फ्री में रिस्क ले रहा है ना। सेकेंड होता है रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर।
श्योरिटी किसके लिए रिस्क लेता है? प्रिंसिपल डेटर के लिए। अगर प्रिंसिपल डेटर को ही आप फ्री कर देते हैं तो श्योरिटी भी फ्री हो जाता है। ठीक है, ये है आपका सेक्शन 134। ये सारे सेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। 130 में क्या था आपका? बाय नोटिस कंटिन्यूइंग गारंटी में डिस्चार्ज हो सकता है श्योरिटी का राइट, श्योरिटी का लायबिलिटी। सेक्शन 131 क्या बोलता है? जब श्योरिटी का डेथ हो जाएगा तो वो फ्री हो जाएगा, वो तो सबसे फ्री हो जाएगा। सेक्शन 133 क्या बोल रहा है कि अगर क्रेडिटर कोई चेंज कर दिया कंडीशन आफ्टर द, मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हैपेंड, देन उस श्योरिटी को डिस्चार्ज कर देगा, क्योंकि उसको पता नहीं था क्या चेंज हुआ। रिलीज ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर 134, सेक्शन 134 क्या मेंशन कर रहा है? अगर प्रिंसिपल डेटर ही फ्री हो गया तो श्योरिटी भी फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंपाउंडिंग गिविंग टाइम प्रॉमिस नॉट टू शो, सेक्शन 135। सेक्शन 135 क्या बोल रहा है? सेक्शन 135 बोल रहा है कि आपका जब भी क्रेडिटर श्योरिटी को, कंपाउंडिंग मतलब उनके बीच में कोई इंटरनल सेटलमेंट हो गया। 10 लाख का लोन था, क्रेडिटर बैंक बोला ठीक है तुम पे नहीं कर रहे हो तो 8 लाख पे कर दो, ठीक है। तो इस सिक्योरिटी को पता नहीं था, लेकिन क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में ये इंटरनल सेटलमेंट हो गया, तो तभी क्रेडिटर का कोई लायबिलिटी नहीं रहेगा। तब फिर गिविंग टाइम, अगर कोई एग्रीमेंट हो गया, क्रेडिटर बोला कि हम 3 साल के लिए एग्रीमेंट किए थे लोन का, लेकिन वो लोन इशू डिस्पर्स होने के बाद क्रेडिटर बोला ठीक है हम इसको बढ़ा के 5 साल कर देते हैं, और प्रिंसिपल डेटर के बीच में एग्रीमेंट हो गया नहीं नहीं वो 3 साल नहीं अभी हम 5 साल के करते हैं, तो उस केस में भी श्योरिटी का लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाए, क्योंकि वहां पे चेंज होता है। प्रॉमिस नॉट टू शो, अगर प्रिंसिपल डेटर को प्रॉमिस कर दिया, जो क्रेडिटर था बैंक ने लोनी को प्रॉमिस कर दिया चलो भाई मैं तुम्हें फ्री कर देता हूँ, अभी कोई केस नहीं करता तेरे ऊपर, तो वहां पे भी श्योरिटी का लायबिलिटी खत्म हो गया। ये सब मेंशन है कहाँ पे? सेक्शन 135 में। नेक्स्ट आपका सेक्शन 139। सेक्शन 139 बोलता है इंपेयरिंग श्योरिटीज रेमेडी, अगर क्रेडिटर ऐसा कुछ भी करता है जिससे वो श्योरिटी का कोई राइट इंपेयर होता है, मतलब कोई राइट इन्फ्रिंज होता है, तब भी श्योरिटी का लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाता है। सेक्शन 141 बोलता है लॉस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब क्या? जब भी कोई गिरवी रख के कोई लोन लेता है, सोना हो गया, लैंड हो गया, घर हो गया, जो मॉर्गेज रख के लोन लेते हैं वो होता है सिक्योरिटी। अगर वो सिक्योरिटी ही लॉस हो गया, क्रेडिटर मतलब बैंक अगर वो सिक्योरिटी को खो दिया कि उसको क्वालिटी डिटेरियोरेट कर गया, तो उसका वैल्यू तो घट गया ना। तो सिक्योरिटी का उसमें राइट था, थ्योरी ऑफ सब्रोगेशन, जो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन में क्या होता है, अगर डेटर लोन रिपे नहीं करता है तो सिक्योरिटी रिपे करता है, तो उसका राइट बन जाता है वो सिक्योरिटी के ऊपर। लेकिन अगर वो सिक्योरिटी ही कोई चेंज हो गया, उसका वैल्यू घट गया, कि वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो लायबिलिटी तो खत्म हो गया ना सिक्योरिटी का। सो सेक्शन 141 नहीं बोलता है कि लॉस ऑफ सिक्योरिटी में यू कैन डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी। नेक्स्ट कैटेगरी है आपका डिस्चार्ज बाय इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाए तभी आपका सिक्योरिटी का लायबिलिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है। जो कब होता है? मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, कंसीलमेंट हो गया, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है 143, 42 एंड 143। तो कोई अगर बाद में पता चला कि कोई मिसरिप्रेजेंटेशन था कोई कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर कोई कंसीलमेंट था, कोई फैक्ट को छुपाया गया था, तो सिक्योरिटी के साथ वो तो नाइंसाफी हुआ ना। अगर ऐसा कुछ बाद में पता चलता है तो द सिक्योरिटी गेट्स डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑफ व्हाट? लायबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ओके, सो आपको ये सारे सेक्शन याद रखना होगा। सेक्शन 130, 131, 133, 134, 135, 139, 141, 142, 143। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 सेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए खास करके। डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी, इन व्हाट केसेस द लायबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी गेट्स डिस्चार्ज, so you have to mention all these scenarios. And in judiciary examinations also the sections can come directly. Okay, हमने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर किए। क्या क्या हम कवर किए? व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, उसमें हम पढ़े राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडेमनीफायर, ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, ऑफ श्योरिटी, ये सब पढ़े। हम डिस्टिंक्शन भी पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है, क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम क्या पढ़े? हम पढ़े काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी, कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और फाइनली हम क्या पढ़े?
कब आपका श्योरिटी का जो गारंटर है उसका लायबिलिटी कब खत्म होता है, कब उसको फ्री किया जाता है। हम ये 9 सेक्शन पढ़े 132 लेके 143 तक। यहाँ पे हम पढ़े कौन कौन से सिचुएशन में we can discharge the liability of the surety. So friends, this is all about the contract of indemnity and contract of guarantee. As I have promised you, I will bring next class the concepts of contract of bailment and contract of pledge in one class. Then we will discuss contract of agency in two more classes. So in four classes, we will finish all the special contracts as per the Indian Contract Act. Okay. So this is it. We have covered all the concepts and we have finished the first part of the special contracts as per our schedule. So if you really like the content, then you can subscribe to my channel so that you will be get notified whenever I will create the next videos, new contents. And you can also like the video. You can share the videos with your friends because everybody has the same right on knowledge. So this will be really motivating for me.